Namaskar, this is Priyadarshan. Please accept my greetings from the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So, dear children, we are going to complete the remaining part of the lesson which we began in the last or in the previous class. The name of the lesson, it was Bharat is my home. So, we have discussed in detail what this lesson has for all of us. The author, I hope you have learnt it, the author, his name is Dr. Zakir Hussain, the third president of our republic, and he was not merely a president, he was a great educationist, and the kind of educationist which he was, you can imagine that in the year of 1937, Mahatma Gandhi consulted him, requested him to head a committee which was responsible for formulating the curriculum, the syllabus of elementary education. So, this kind of caliber he was having. He was a great educationist, a brilliant orator. He served as vice chancellors in the prestigious universities like Jamia Millia Islamia, Aligarh Muslim University. He also, for certain time period, he was also the governor of our own home state, Bihar, and he becomes also the president of this republic. So, the lesson which we are studying, in fact, it is an extract from his speech which he delivered after taking oath of the president of this country. तो जिस पाठ को हम लोग पढ़ रहे हैं यह एक गद्यांश है, उनके भाषण से लिया गया है और यह भाषण उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद जो इनॉग्रल स्पीच होता है वो दिया था और उसी भाषण का यह एक हिस्सा है। तो इस भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन, जैसा कि हम लोग इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि वह महान शिक्षाविद थे, शिक्षा से ताल्लुकात उनका ताउम्र रहा और शिक्षा कितना क्रूशियल है, शिक्षा कितना इम्पॉर्टेंट है, वह कितना अहम है किसी भी राष्ट्र, किसी भी समाज की प्रगति के लिए, की समुन्नति के लिए। इन तमाम बिंदुओं पर डॉक्टर जाकिर हुसैन विस्तार से बात करते हैं। फॉर हिम एजुकेशन इज क्रूशियल फॉर द सक्सेस ऑफ ए नेशन। किसी भी राष्ट्र की सफलता उसकी शिक्षा पर निर्भर करती है। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस लेसन। ही वाज टॉकिंग अबाउट working on individuality, at the same time working for the society, for the nation. He has also discussed in detail that material development is also important together with the spiritual development or cultural development. तो भौतिक उन्नति भी उतना ही अहम है जितना सांस्कृतिक उन्नति। तो both fields are equally important for a balanced development of a society. So, these are the things which we have already discussed in the previous class. Let us see what the next part is having for us. So, this dual effort will give to the life of our state. This dual effort, ये जो दो प्रयास हैं, will give to the life of our state, यह हमारे राष्ट्र को एक जिंदगी देगा, a special flavor, हमारे राष्ट्र को एक नई जिंदगी देगा, उसमें एक नया रंग भरेगा। For the state to us will not be just an organization of power, एक राज्य हमारे लिए महज शक्ति का केंद्र नहीं रहेगा। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इस पर गौर करें आप। फॉर द स्टेट टू अस
will not be just an organization of power, but this but is very big. यह लेकिन बहुत बड़ा है बच्चों. But a moral organization. तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि कोई राष्ट्र या कोई राज्य सिर्फ शक्ति का केंद्र ही नहीं रहेगा, बल्कि वह एक नैतिक संस्थान बनेगा. बल्कि वह एक नैतिक संस्थान बनेगा, एक नैतिक संगठन रहेगा. So there is a huge difference, isn't it, between power center and moral organization or moral center. When a state is a power center, then it believes in a strength. It loves doing everything with coercion, with force, with bullying. No? So it believes in the theory of punishment. But when a state has moral capabilities, or when a state is moral, जब कोई राष्ट्र नैतिक रूप से बना है या उसकी बुनियाद में नैतिकता है, तो वह राष्ट्र कैसा होता है? द राष्ट्र इज काइंड टू इट्स सिटीजन्स. द कंट्री loves its poor and works in the development of those deprived sections of the society. तो वह राष्ट्र उदार होता है, उसमें करुणा होता है, उसमें दया होती है. ये सारे चीज़ तब होते हैं जब राष्ट्र की बुनियाद में नैतिकता हो. So it is a part of national temperament and inheritance from the great leader of our liberation movement. It is a part of national temperament. यह एक राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है. An inheritance from the great leader of our liberation movement. और हमें ये विरासत में मिली है. आप जरा सोचें किन से मिली है? तो the people who sacrificed their lives as freedom fighters, who have struggled for the independence of this country. वो लोग जो अपनी ज़िंदगी को राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिए, राष्ट्र के लिए लड़े, देश को आज़ाद करवाए. तो उनकी विरासत से जो हमें चीज़ें मिली है, जिसको हमने इनहेरिट किया है, सो यह उसका हिस्सा है ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट. और उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, जिनसे हमें ये विरासत मिली है, उनमें से अति महत्वपूर्ण नाम महात्मा गांधी का है. सो महात्मा गांधी, दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पसेस. वह बल देकर इस बात को कह रहे हैं. डॉक्टर जाकिर हुसैन, ही इज कोटिंग गांधी, बिकॉज बच्चों, गांधी इनफैक्ट राष्ट्रीय आंदोलन में उस वर्गद की तरह जिसके नीचे जितने भी योद्धा थे, जितने भी राष्ट्र निर्माता थे, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, सब उसकी छाँव में ठंडक प्राप्त करते थे, प्रेरणा प्राप्त करते थे और संघर्ष के लिए एक नई ऊर्जा प्राप्त करते थे. सो दिस वाज द रोल इन ब्रीफ यू कैन से ऑफ एम के गांधी. सो महात्मा गांधी, दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पसेस. महात्मा गांधी का यह संकल्पित वचन था कि शक्ति का प्रयोग सिर्फ नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाना चाहिए. द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग, बल की शांति, इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवरसेल्व्स टू वर्क फॉर. तो वी शैल डेडिकेट, हमें इसके लिए समर्पित होना चाहिए, इसके लिए कटिबद्ध होना चाहिए, इसके लिए कार्यरत होना चाहिए. आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी. मुझे मेरे लोगों में, मुझे अपने लोगों में पूरा यकीन है दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्विजिट फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूअल टास्क. मुझे अपने लोगों में पूरा यकीन है कि जितनी एनर्जी चाहिए, जितनी ऊर्जा चाहिए, जितना बल चाहिए, जितनी क्षमता चाहिए, वो इस कार्य सिद्धि में, इस दोनों कार्य को सिद्ध करने के लिए ज़रूर प्रयत्न करेंगे, ज़रूर खुद को लगाएंगे. इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस एन्चेंटिंग एंटरप्राइज. और इस सुनहले उद्यम के लिए, एन्चेंटिंग जिसको आप हिंदी में मोहक कहें,
जो आपके लिए बहुत सुंदर हो, आपके लिए प्रिय हो, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इस एंटरप्राइज को, इस उद्यम को मोहक कह रहे हैं, जो इनको बहुत आकर्षित करता है। तो मैं इस सुंदर उद्यम के लिए मुझे भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं भी इसके लिए अपने हिस्से का योगदान करूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस स्टोरी। एट द एंड व्हाट आई हैव फॉर यू, इन फैक्ट आई वुड लाइक टू शेयर वन कोट फॉर ऑल ऑफ यू एज ए स्टूडेंट्स। नो, मैं एक कोट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो डॉक्टर जाकिर हुसैन का ही है और जो खासकर आप लोगों के लिए है। वो कोट यह है कि द एम ऑफ अ स्टूडेंट्स लाइफ शुड बी टू ओवरकम एनी इल्यूजन। किसी भी प्रकार के भ्रम को तोड़ देना यह एक छात्र के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और प्रेजुडिसेस ही मे हैड एंड टू गिव अप मीन हैबिट्स। और जो आदतें ठीक नहीं हैं, जो आदतें श्रेयस्कर नहीं हैं, उनको त्यागना भी है। He should, and it is his duty to propagate education among his illiterate brothers and to consider the propagation of education as part of his own education. So this is the significance of education, and this is how Dr. Zakir Hussain has elaborated the role of a student, the responsibility of a student. So I hope you must have enjoyed the lesson. Without wasting time, let us have a look on certain multiple choice questions which I have especially selected for you people. So let us have a look on these multiple choice questions. So dear students, now it is the time for the quiz. So it is quiz time in a sense. So the first question for you is, the author writes past is neither dead. लेखक कह रहे हैं कि पास्ट न तो मृत है, यह मृत भी नहीं है। इट इज नीदर डेड नॉर, न तो यह मृत है या। अब आपको सोचना है, हमने इस चीज़ को पढ़ा है। आई होप यू मस्ट बी रिमेंबरिंग इट क्वाइट वेल। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे ठीक ठीक याद कर रहे होंगे। मुझे तो याद है कि मैंने क्या पढ़ाया है। सो द ऑथर राइट्स पास्ट इज नीदर डेड, पास्ट नहीं तो मृत है। और दूसरा क्या है? द ऑप्शंस आर स्टैटिक, अलाइव, डायनेमिक, प्रोग्रेसिव। ये चार ऑप्शन हैं, आप मुझे बताएं, आप ज़रा सोचें, गौर करें। स्टैटिक का मतलब जो एक जगह रुका हुआ ठहराव होता है। अलाइव का मतलब जीवंत है, जिसमें जीवन है। डायनेमिक, जिसमें गतिशीलता है। प्रोग्रेसिव, जो विकासशील है। तो आपके हिसाब से आप सोचें सही आंसर क्या होगा। मुझे लग रहा है कि आपकी सोच सही दिशा में जा रही है। एंड होपफुली द राइट ऑप्शन इज, लेट अस चेक द आंसर फर्स्ट, देन आई विल टेल यू. So have a look at the right answer, sir. So the author writes past is neither dead nor static. So you are absolutely right, children. आपका अंदाज बिल्कुल सही है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। और मैं भी यही उम्मीद करता था कि आपका जवाब बिल्कुल सही होगा. So the answer is static. That's true. Let us have a look on the next question. The second question for you, dear children, is Dr. Radhakrishnan had firm belief in. Dr. Radhakrishnan को पूरा यकीन था, किस चीज़ में था? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट्स, अधिकारों में. दूसरा एजुकेशन, शिक्षा में. तीसरा एसेंशियल ह्यूमैनिटी, अनिवार्य रूप से मानवता में. नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं. तो आप एक मिनट के लिए सोचें कि सही आंसर क्या होगा. डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में हमने पढ़ा है, इसी पार्ट में पढ़ा है. डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में, शुरुआती हिस्से में ही डॉक्टर राधाकृष्णन पर या उनकी वह खूब प्रशंसा करते हैं. उन्होंने
भूरी भूरी प्रशंसा की है. So Dr. Radhakrishnan had firm belief in, dear children, the right option. Yes, you are absolutely right, but still let us check the answer. The right answer according to you all is essential humanity. So you are absolutely right this time also. Essential humanity. No, here Dr. Radhakrishnan had firm belief. Dr. Radhakrishnan को essential humanity में पूरा यकीन था. Let us see the next one. Which great man devoted his life to the pursuit of knowledge and truth? Which great man devoted his life? किस महान जन ने, किस महान इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई, पूरी जिंदगी को समर्पित किया टू द परसूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रुथ, सत्य और ज्ञान के लिए पूरी जिंदगी समर्पित किया. हु कैन बी हियर? यहाँ वो कौन हो सकते हैं? अगेन यू आर हैविंग सिमिलरली द 4 ऑप्शंस: अब्राहम लिंकन, स्टालिन, डॉक्टर राधाकृष्णन, नेल्सन मंडेला. इफ़ यू अप्लाई लिटिल बिट इंटेलिजेंसिया, अगर आप थोड़ी बहुत अपनी इंटेलिजेंसिया का प्रयोग करें तो यू कैन इवन गेस द आंसर ऑल्सो करेक्टली. आप गेस भी कर सकते हैं, यद्यपि हमने इसे भी बखूबी पढ़ा है. यस चिल्ड्रन, यू आर क्वाइट स्मार्ट, क्वाइट इंटेलिजेंट, and your answer is going to be correct. Still we have time to match the answer. Let us see the right option. Yes, this time also you have proved yourself exactly right. The right option is Dr. Radhakrishnan. Move to the next one. What is the end product of work on one's self? This thing we have also discussed in detail. So what is the end product? No, आखिरी परिणाम क्या होता है of work, काम का, on oneself, अपने खुद पर. तो काम का खुद पर आखिरी परिणाम क्या होता है? So yes, I think you are very close to the answer, children. Just frame it and it is at its right place. Yes, that's true. So I hope you are absolutely right, but still let us see the right option. Yeah, that's also exactly right. A free moral personality. So what is the end product of work on oneself? So the end product of work on oneself is a free moral personality. एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व. यही है, सही आंसर है. आपने सही जवाब दिया. अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. Who among the following was an eminent educationist? इन सब में सबसे महान या बहुत ही ख्याति उपलब्ध शिक्षाविद कौन थे? ये तो आप बिल्कुल बता ही देंगे, क्योंकि मुझे अब यकीन हो चला है आपने सीरियसली पढ़ा है इस पाठ को. So yes children, you have the options: Dr. Zakir Hussain, M.K. Gandhi, Periyar, Ambedkar. Of course, the first option is right. Still, check the answer, please. Yes, Dr. Zakir Hussain. This time, you are also right. Yeah, the next one, please. The author was the first president of India. What do you think, children? Was he the first president? आप बच्चों क्या सोचते हैं? क्या वह प्रथम राष्ट्रपति थे? अगर वो प्रथम राष्ट्रपति थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? ये सवाल आप बिल्कुल सही किए. तो इस तरह से देखते हैं कि द ऑथर वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ऑफ कोर्स नॉट. नाउ देयर आर 3 ऑप्शंस. सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई डोंट नो. यू हैव टू से द आंसर. नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं. थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, व्हाट ही वाज चिल्ड्रन? One option is already declared null and void. Only 3 options are there. So you have to say the answer. Please say the right answer. Yes children, this time also you have proved yourself very right. The right option is third president of India. That's great on your part.
You have replied all the answers correctly. Let us move to the next one, please. Yes, sir. Next one, sir. Dr. Zakir Hussain passed away in. Passed away in means expired. No, he died. So Dr. Zakir Hussain died, children, in which year? So these are the quite normal questions for intelligent students like you all. आप सब के लिए एक बहुत ही सामान्य सा सवाल है. Dr. Zakir Hussain passed away in. So let us check the answer. Yes, it's quite normal one to know. For intelligent students like you all, 1969 it's quite answer. आप सब कुशाग्र छात्रों के लिए यह एक मामूली सवाल था. आप सब के सब सही जवाब दिए. सही आंसर है 1969. अगली क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. Dr. Zakir Hussain was also. Dr. Zakir Hussain ये भी थे. क्या थे? आप गौर करें. हम लोगों ने पाठ में पढ़ा था कि किस किस महत्वपूर्ण पदों पर वो आसीन हुए थे. Once he was, there were so many important posts which he occupied, like governorship, like vice chancellorship of two most prestigious universities of this country, the presidentship. So there were so many. He was a man with several crowns. So Dr. Zakir Hussain was also the chief minister of Odisha. Have you gone through this, children? Do you think so? So you have to say the right option. My work is just to knock your intellect right now. The governor of Bihar, was he so? Lieutenant governor? Prime minister? What do you think the right answer is, children? आपको क्या लगता है सही जवाब क्या हो सकता है? So for that purpose, let us cross check the answer. Yeah, that's the right answer, and many of you are also correct. The governor of Bihar. So he was also the governor of Bihar. Yeah. अगली सवाल की तरफ चलते हैं. The quality of education is inescapably involved. The quality of education is inescapably involved. उससे बचा नहीं जा सकता है. उसमें ये शामिल है. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता पूरी तरह से सम्मिलित है. किस चीज़ में? इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन. राष्ट्र की गुणवत्ता में बच्चों. इन इट्स जियोग्राफी, इसके भूगोल में. कल्चर एंड सिविलाइजेशन, संस्कृति और सभ्यता में. रिचुअल्स में, परंपराओं में, कर्मकांडों में, रिवाजों में. सोचें, सही उत्तर सोचें. Yeah, some of you are thinking the right answer, but for the satisfaction of we all, let us cross check the answer. So the right option is in the quality of the nation. Yeah, that's true option, and many of you replied correctly. Let us see the succeeding question. Which is the prime instrument of nation building? प्राथमिक औजार कौन सा है राष्ट्र निर्माण के लिए? प्राथमिक उपकरण कौन से हैं राष्ट्र निर्माण के लिए बच्चों? मिलिट्री, हेल्थ, wealth, education. What do you think, children? No. What is the theme word of this chapter? This chapter revolves around which word? Which word has been repeated umpteen number of times in the chapter? कौन सा वह शब्द है जो इस चैप्टर में बारंबार कई बार प्रयोग में आया है? आप लोग इंटेलिजेंट हैं, सोचें, सही जवाब दें. Many of you are having the right option.
but that's not coming up. Let us check the answer. Yes, children, it's education. So which is the prime instrument of nation building? It's education, education and education. You must have watched one movie by Salman Khan where he says, so just like that, it is education, education and education. शिक्षा, शिक्षा और शिक्षा, यही एक ऐसा सार्वभौमिक उपकरण है जिससे इंसान की ज़िंदगी को सुधारा जा सकता है, जिससे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है. So education is the right option. Let us move to the next question. Power should be used for moral purposes. नैतिक उद्देश्य के लिए ही शक्ति का प्रयोग होना चाहिए. It said. Who said this line, children? Power should be used for moral purposes. I am not going to give hint this time. मैं इस बार आपको हिंट नहीं दूंगा, आपको खुद बताना है. आप सोचें. Power should be used for moral purposes is said by whom? Yes, children. I was sure that you will give correct answer. मुझे यकीन था आप सही जवाब देंगे और आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं. सही ऑप्शन है M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी. अगले सवाल की तरफ चलते हैं. Dr. Zakir Hussain says Bharat is home and its people. Dr. Zakir Hussain कह रहे हैं बच्चों भारत इज होम. अगर आप ठीक ठीक याद करें तो मैंने आपको होम और हाउस का डिफरेंस बताया था. तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि भारत इज माय होम, भारत मेरा गृह है, मेरा घर है. एंड इट्स पीपल, और इसके पीपल क्या है और इसके लोग क्या हैं. भारत को तो उन्होंने अपना घर मान लिया, लेकिन इसके लोग उनके लिए क्या हैं आप बताएं. पहला ऑप्शन बच्चों सिटीजन्स है, जिसका मतलब नागरिक होता है. दूसरा ऑप्शन वोटर्स है. इस शब्द को तो सब समझते होंगे, मतदाता जिसको कहते हैं जो वोट डालता है. तीसरा ऑप्शन फॉलोवर्स है, जो साथ में चलने वाले होते हैं, अनुयायी जिसको आप बोलते हैं. फोर्थ ऑप्शन फैमिली मेंबर्स है. तो दिस टाइम ऑल्सो डियर चिल्ड्रन यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ वेरी राइट. द राइट ऑप्शन इज फैमिली मेंबर्स. तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत को अपना घर माना और इसके सभी निवासियों को अपना परिवार माना, अपने परिवार का सदस्य माना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड लैंग्वेजेज. बगैर किसी, या यूँ कहें तो बगैर किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा में भेदभाव किए बिना हर भारतीय को उन्होंने अपने घर का सदस्य माना. हाउ ग्रेट ही वाज. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस एक्सट्रैक्ट इज द पार्ट ऑफ डॉक्टर हुसैन्स स्पीच. दिस एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? मैंने कई बार आपको बताया है. एक्सट्रैक्ट का मतलब गद्यांश होता है, नहीं, या अंश जिसको आप कहते हैं. आम बोलचाल की भाषा में उसे हिस्सा भी आप कह सकते हैं. तो दिस एक्सट्रैक्ट इज द पार्ट ऑफ डॉक्टर हुसैन्स स्पीच. डॉक्टर हुसैन के द्वारा दिए गए भाषण का यह एक हिस्सा है, यह एक गद्यांश है, यह एक अंश है. नो सो वह भाषण उन्होंने कब दिया था? व्हेन ही बिकेम द गवर्नर ऑफ बिहार, जब वो बिहार के राज्यपाल बन गए थे तब, या ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब वो भारत के राष्ट्रपति बनने का शपथ लिया था उसके बाद का, बिकेम द एजुकेशन मिनिस्टर, जब वो शिक्षा मंत्री हो गए थे तब का. नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं. आप सोचें, डी तो है नहीं,
बचते 3 ऑप्शन हैं। 3 ऑप्शन में आप सब के सब काफ़ी कुशाग्र बुद्धि के हैं, स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं। आप बताएं सही ऑप्शन क्या होगा? Yeah, many of you are very close to the right answer, but let us cross check it. The right answer is he took oath as the President of India. राष्ट्रपति का जब उन्होंने शपथ लिया था और वहाँ जो भाषण उन्होंने किया था उसी भाषण का यह एक हिस्सा है। Let us move to the next few questions. What is alive and dynamic? क्या जीवंत है, क्या गतिमान है? नो, alive का मतलब जीवंत है और dynamic का मतलब जो गतिमान है, जो गतिशील है। नो, so what is alive and dynamic? आखिर वो कौन, क्या वो चीज़ है जो alive है और डायनेमिक है, जीवंत है और गतिशील है? ऑप्शन ए इज कंट्री, ऑप्शन बी इज पास्ट, ऑप्शन सी इज पीपल, ऑप्शन डी इज नेबर्स. नो, सो व्हाट यू हैव रेड चिल्ड्रन अबाउट द पास्ट इन द लेसन जस्ट वी हैव कंक्लूडेड? आपने पास्ट के बारे में क्या पढ़ा था? यस, वेरी राइट, हमने पास्ट के बारे में यही तो पढ़ा था कि पास्ट इज नीदर डेड नॉर स्टैटिक. सेम फ्रेज उन्होंने, लेखक ने भी पाठ में इस्तेमाल किया है कि पास्ट हमारा अतीत नहीं तो मृत है और नहीं तो ठहरा हुआ है. पास्ट इज अलाइव एंड डायनेमिक. देयरफॉर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, past. Past is the right answer. Yeah, that's true. That's true. What is the end product of self-imposed discipline? Self-imposed discipline. अब यहाँ गौर करें, आप सब इस बात को तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझते होंगे. भला कौन ऐसा छात्र होगा जो अनुशासन को नहीं समझता होगा, या जो जिसका पाला अनुशासनात्मक कार्रवाई से नहीं हुआ होगा? मैं उम्मीद करता हूँ सबके साथ हुआ होगा. सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, कभी न कभी. सो व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन? लेकिन यहाँ जो डिसिप्लिन का नज़रिया है वो अलग है. यहाँ जो डिसिप्लिन का पहलू है वो अलग है. सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन की बात कर रहे लेखक, मतलब आत्मानुशासन का. आप खुद को कैसे अनुशासित करते हैं. नो, तो उस सो व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट, तो उसका आखिरी परिणाम क्या है? सो इस आत्म अनुशासन का आखिरी परिणाम क्या होता है? द ऑप्शंस आर फ्री थिंकिंग, लीडरशिप क्वालिटी, फ्री मोरल पर्सनैलिटी, सर्वाइवल क्वालिटी. सो मैनी टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड one option which is right and is the part of these 4 options. इसमें से एक ऑप्शन सही है जिसके बारे में हम लोगों ने बार बार चर्चा किया है, और वो ऑप्शन इस 4 में मौजूद है, इस 4 में निहित है. आप मुझे बताएं कि सही ऑप्शन क्या है? तो yes, I am pretty sure your answer must be right, but still we have time. Let us cross check the right option. Yeah, that's true. No, this is the reflection of your brilliance. This is the right option, children. Free moral personality. That's good, that's great. Yeah, so let us see the next one please, or the last one. Dr. Zakir Hussain was given Bharat Ratna in. डॉक्टर जाकिर हुसैन को बच्चों पद्म विभूषण भी मिला था. न जाने कितनी उपाधियों से वो अलंकृत थे. उनमें से सबसे महत्वपूर्ण या जो सर्वोच्च इनाम होता है अपने देश में, जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है, वो है भारत रत्न. सो डॉक्टर जाकिर हुसैन was given Bharat Ratna in which year, children?
This is the last question. Your answer has to be correct, because it is, there is an old saying, if end is well, everything is well. जैसे कि पुरानी कहावत है, अंत भला तो सब भला. ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस सीरीज का. So Dr. Zakir Hussain was given Bharat Ratna. In which year, children? Please tell me the right answer. Yes, you are very right. No. Yeah, you have completely mesmerized me, children. You all are gifted one, and I am pretty sure your answer, your option is exactly correct, but still it's better to cross check it. What is the right option? Let us see. So the right option is 1963, as you all have exactly said. So I hope, dear children, you must have enjoyed this session. It is always a pleasure to be with you all. So I'll say, in fact, very soon I'll be back again with some new topic. Till then, goodbye, namaskar.